مسلم اسکالر ان کو میرا نہیں خیال کہ کچھ خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ہاں مردوں میں سیاست چلتی رہتی ہے, مردوں میں بیانات چلتے رہتے ہیں, وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کا. خواتین کا ایک احترام ہے معاشرے میں. ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ سنت مبائی رکھی ہوئی ہے. ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کے متعلق کیا بات کر رہا ہوں. ان کو تو یہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ان کے گھر میں بھی ماں بیٹیاں ہیں, اور دوسروں کی بغیر ماں بیٹیوں کی اگر ان کے کریں گے, حفاظت کریں گے, تو اگلا ان کی بھی کریں گے ہم. جو اپنی بیٹی بہنوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, جو باہر ہی رہتے ہیں, زیادہ تر تو وہ اپنے شہر میں رہتے ہی نہیں ہیں, کم ہی ہوتے ہیں اپنے شہر میں. تو بیٹیوں بہنوں کی عزت تو تب کریں گے نا جب ان کے پاس رہیں گے, ان کو فیل ہوگا کہ بیٹی کیا ہے, بہن کیا ہے, بیوی کیا ہے. پھر اس کے کی خواتین کے بارے میں پہلے سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اوپر سے ماشاءاللہ وہ سیاست میں بھی ان ہے کافی, ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہر ایک بات ہے نا جو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. پہلے تو ماشاءاللہ وہ قرآن کی حدیثیں سناتے تھے, ٹھیک ہے. جب اپنے پر کوئی بات آئی ہے تو ان کے لیے وہ کوئی بات نہیں ایسی. انہوں نے پی ٹی آئی کو رونتے رونتے نا ملک کی عزت دار خواتین کو بھی رون ڈالا ہے. تو یہ چیز خواتین تو بالکل برداشت نہیں کریں گی. وہ پی ٹی آئی کی ہیں, پی 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 کی ہیں, یا کسی بھی نون لیگ کی ہیں. خواتین ہیں, سب کی مائیں بیٹی ہیں, سب کے گھر میں موجود ہوتی ہیں, اور بینگ مسلمان ہم رسپیکٹ چاہتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, ون پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین, مولانا فضل الرحمان جو کہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں اور کافی زیادہ رسپیکٹیبل بھی ہیں, لیکن اپنے جلسے میں بغض پی ٹی آئی کے لیے ایک بغض رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا انہوں نے خواتین کے متعلق بہت ہی شرمناک اور گھٹیا بیانات دیے ہیں. انہوں نے کیا کیا بیانات دیے وہ تو آگے ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ خواتین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے استغفر اللہ. ناظرین, کافی زیادہ انہوں نے بیہودہ باتیں کی ہیں. آج ہم عوام سے جانیں گے عوام اس بارے میں کیا کہتی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا صارفین اور سیٹلائٹ میڈیا تمام لوگ ہی ان کے اس بیان پہ کافی زیادہ آگ بگولا نظر آ رہے ہیں. ہم عوام سے جانتے ہیں عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر ان کا اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ خرم شہزاد شاہ. خرم شہزاد, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کا جو ہے تعارف وہ سب کو ہی پتہ ہے, لیکن انہوں نے اپنے جلسے میں ایک بہت ہی نازیبا قسم کا بیانات دیے ہیں خواتین کے متعلق. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک مولانا ہے, وہ ایک رہنما ہے, سیاسی لیڈر ہے, ان کو اس طرح کے الفاظ یوز کرنے چاہیے تھے؟ ایز اے مسلم اسکالر ان کو میرا نہیں خیال کہ کچھ خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ہاں مردوں میں سیاست چلتی رہتی ہے, مردوں میں بیانات چلتے رہتے ہیں, وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کا. خواتین کا ایک احترام ہے معاشرے میں جو ہم سب پر ایک لازم ہے, فرض ہے. کیوں ہمارا جو مذہب ہے, دین ہے, وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خواتین کو ان کے حقوق دینے ہیں, ان کا احترام کرنا ہے, ان کا ادب کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے مطلب کس طرح سے نازیبا الفاظ بولے ہیں خواتین کے لیے, اور خواتین کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ معافی مانگے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطالبہ خواتین نے صحیح کیا ہے, اور اگر صحیح کیا ہے مطالبہ تو کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ معافی مانگیں گے؟ ہاں اگر ان کا مطالبہ, اگر ان کے الفاظ میں, ان کے بیان میں, الفاظ میں ایسی بات ہے جو کہ واقعی میں نازیبہ ہے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے. تو ان کو معافی ڈیفینیٹلی مانگنی چاہیے. یہ تو مطلب کہنے کا ہے کہ وہ اگر یہ قدم آگے بڑھائیں گے ایک اپولوجائز کا, تو وہ باقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے, کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے, تو ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ تو ہم بھی کہیں گے. سیاسی لیڈر کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو عوام کا خیال کرنا چاہیے, خاص کر کے لیڈیز کے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ ان کو بالکل نہیں بولنے چاہیے. وہ چاہے مولانا فضل الرحمان ہے, چاہے کوئی بھی انسان ہے, لیڈیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ان کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس نے منہ پر داڑھی رکھی, اس کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. یہ غلط بات ہے. سر, خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے انہوں نے بے شرمی سے سب کچھ بولا ہے, انہیں معافی بھی اسی طرح سے مانگنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ معافی مانگیں گے؟ جی معافی تو انہیں مانگنی چاہیے. اگر غلط بیانات دیے اس نے لیڈیز کے بارے میں تو ان کو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ قابل احترام ہوتی ہیں.
तो ये गलत बात है, उनको ये माफ़ी मांगनी चाहिए और हक भी है उनको माफ़ी मांगने का, और ये इन्होंने बहुत गलत हरकत की है। पहली बात तो ये है कि उनको तो बात करने का तो पता ही नहीं है कि बात क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वो अपने इक़्तिदार के नशे में इतने झूम गए हैं, इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि उनको इतनी हया नहीं है कि उन्होंने अपने चेहरे पे सुन्नत मुबाई रखी हुई है। उनको तो पता होना चाहिए कि मैं किसके मुतालिक क्या बात कर रहा हूँ। उनको तो ये सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके घर में भी माँ बेटियाँ हैं और दूसरों की बगैर माँ बेटियों की अगर उनके करेंगे, हिफाजत करेंगे, तो अगला उनकी भी करेंगे हम, क्योंकि उनको चाहिए कि कौम के लिए वो खड़े हुए हैं। अब कौम के वज़ीर आज़म बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके से बनना चाहते हैं तो फिर तो कोई उन्हें चाहेगा भी नहीं आना ना लाना। अब दूसरा बात ये कि दूसरों के पीछे बोलने से बेहतर ये है कि पहले आप अपने आप को देखें कि आप दूसरों की बेटियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और इमरान खान अगर अपने जलसे में, अगर उनकी जलसे में आती हैं औरतें आती हैं या बच्चे आते हैं, जो भी आते हैं, या वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनके लिए आते हैं, तो उनके लिए जब आते हैं वो उनके लिए झूमते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा लीडर आगे निकले। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अगर वो निकली हैं तो आप उनके लिए गलत मुहावरा इस्तेमाल करें, गलत बात इस्तेमाल करें। फिर अब ऐसे तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आप किसी बहन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, फसाद होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी दाढ़ी सुन्नत मुबारक का आप हया करें, आप उनको अच्छी तालीम दें कि आप ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, कुछ किरदार गलत होते हैं, आप उन्हें समझा दें तरीके से, लेकिन आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप याद रखिए कि किसी के ऊपर आप एक उठाएंगे तो चार आपकी तरफ उठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने सरेआम ये अल्फाज बोले हैं इतनी बेशर्मी से, उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए? तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए 100%, क्योंकि हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, हमारे घर में भी हैं भाई। हम किसी को क्यों किसी के करेंगे दिलगज़ारी के भाई ना हो, ऐसा हो, ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मौलाना साहब को तो बचपन से मैं देख रहा हूँ, मेरी भी 55 साल उम्र हो गई है, उससे पहले का ही देख रहे हैं। ये जो उनसे है ना, ये पैंदे बदलते रहते हैं, बड़ा कुछ कहते रहते हैं, फिर माफ़ी मांग के फिर सीट पे आ जाते हैं। ये सारे ही जितने भी सियासतदान हैं ना, सारों का यही है, एक दूसरे को बुरा कहना है ताकि मीडिया पे रहें। किसी को बुरा कहेंगे तो मीडिया पे रहेगा ना। लेकिन ना इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने, एक दूसरे को नहीं बुरा कह रहे, खवातीन को, बेटियों को, बहनों को उन्होंने इतने ज़्यादा गलत किस्म का बुरा कह दिया। नहीं, ये दौरों पे ही रहते हैं, कभी अपने घर तो गए नहीं, तो बेटियों बहनों की इज़्ज़तें क्या करेंगे। जो अपनी बेटी बहनों की देखभाल नहीं कर सकते, जो बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर तो वो अपने शहर में रहते ही नहीं हैं, कम ही होते हैं अपने शहर में। तो बेटियों बहनों की इज़्ज़त तो तब करेंगे ना जब उनके पास रहेंगे, उनको फ़ील होगा कि बेटी क्या है, बहन क्या है, बीवी क्या है, फिर उसके मुतल्लिक नहीं कोई चीज़ बोलेंगे। अगर वो रहेंगे नहीं पास तो फिर तो वो दूसरों के लिए जो मर्ज़ी कह सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? उन्होंने किस तरह से बुरे अल्फाज यूज़ किए हैं, तो खवातीन का भी यही मुतालबा है, बल्कि सबका यही मुतालबा है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, अभी तो 2-4 दिन वो ऐसे ही रहेंगे, फिर उसके बाद माफ़ी मांगेंगे जब उसको एहसास होगा कि यार ये अब मैंने गलत काम किया, फिर माफ़ी मांग के फिर वही अशर करेंगे, फिर और किसी का नाम ले लेंगे। जलसों की नहीं है, ना ही कुछ सियासत की है, ठीक है। वैसे भी जो जिस तरह वो आलम दीन थे ना, उनको तो ये चाहिए, सियासत वगैरह ये चीज़ों में आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल थे। वैसे भी जो जिस तरह की वो बातें करते हैं ना अब, और वो जैसे बयान कर रहे होते हैं, बल्कि ज़्यादा लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, ठीक है। वो वैसे भी बंदा ठीक नहीं है, जिस तरह की वो बातें करता है, उसको तो ये चाहिए था कि इस काम में आना ही नहीं चाहिए था। जितनी उसकी इज़्ज़त थी ना, उसने सारी इज़्ज़त अपनी खुद ही जो है ना ख़राब की है, ठीक है। एक बंदे की इज़्ज़त होती है, वो बंदा ये काम करे तो उसकी इज़्ज़त जाती है, तो उसको वो काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आपके सामने है जो अब वो कर रहा है। देखिए ना, उन्होंने इतने बुरे अल्फाज बोल दिए हैं, खवातीन के लिए घटिया किस्म के जुमले बोल दिए हैं। अब आपको नहीं लगता कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जितनी बेशर्मी से उन्होंने बोला है? वही मैं बता रहा हूँ कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए। वैसे भी वो देखे ना, कभी कहता है जी वो मरियम नवाज़ मेरी बेटी है, कभी उसको जफियाँ डाली होती हैं, कभी पपियाँ कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी कहते हैं वो तो हमारे लिए अहम है, हमारी तो कौम की बेटी है, तो ये है। वो पहले कहते थे कि कोई बेटी जो है ना वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती औरत ज़ात, ठीक है। जब वो इलेक्शन में खड़ी है तो उसके साथ जफियाँ डाल के खड़े हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो हमारे आलम दीन है। की खवातीन के बारे में पहले से बात करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से माशाल्लाह वो सियासत में भी इन है काफ़ी, ठीक है ना। तो उनको हर एक बात है ना जो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। पहले तो माशाल्लाह वो कुरान की हदीसें सुनाते थे, ठीक है।
जब अपने पर कोई बात आई है तो उनके लिए वो कोई बात नहीं ऐसी है। उन्होंने पीटीआई को रोनते रोनते ना मुल्क की इज्जतदार खवातीन को भी रोन डाला है, तो ये चीज़ खवातीन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो पीटीआई की हैं, पीपीपी की हैं या किसी भी नून लीग की हैं, खवातीन हैं, सबकी माएँ बेटियाँ सबके घर में मौजूद होती हैं। और बीइंग मुसलमान हम रिस्पेक्ट चाहती हैं, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। हमें आप ट्रांसजेंडर्स की तरह तो डिस्क्रिमिनेट नहीं ना करें, इतना मिनॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं करें। बजाय इसके आप हमें इक्वल वेजेस दें, बजाय इसके आप हमारे लिए इक्वल कोटाज ओपन करें हर चीज़ में। आप हमें डिस्क्रिमिनेट करें पीटीआई के जलसे को लेके। हो सकता है एक ग्रुप हो, वो पीपीपी के जलसे में भी होता होगा, वो सिर्फ पीटीआई के जलसे को लेके पर्टिकुलरली नहीं है। तो मैं तो खुद जो है वो इमरान खान साहब को फॉलो करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ ये हैं, कुछ चीज़ों पे नून लीग अच्छी होगी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी स्कीम बड़ी अच्छी रही है, पीपीपी की कुछ स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, बेनज़ीर भुट्टो को पर्सनली मैं बहुत लाइक करती हूँ। लेकिन ये कि इन सब चीज़ों को लेकर, और वो जो मौलाना फजलुर रहमान जिस पार्टी में से हैं, उसका तो मुझे कभी भी नहीं पता कि पाकिस्तान में रोल रहा क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सारा जो सोशल मीडिया और सैटेलाइट मीडिया हर कोई आग बगोला है इस बारे में, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? आई थिंक वो राइटर थे खलीलुर रहमान थे, आई थिंक जब उनकी बात हुई थी तो तब उनसे माफ़ी का बड़ा तकाजा किया गया था। और हालांकि उन्होंने सिर्फ एक दो खवातीन जो थी, मारवी मेमन, एक दो खवातीन के बारे में उन्होंने बात की थी, तो तब उन माफ़ी का तकाजा हो गया था। तो अब तो उन्होंने पूरी पाकिस्तानी खवातीन कम्युनिटी को ये बात कह दिया, तो माफ़ी तो उनको ऑब्वियसली करनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब ने देखा कि सारी अवाम की खवातीन तो है ही, लेकिन मर्द हजरात का भी यही कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई नाजेबा किस्म की ये हरकत की है। उन्होंने ना सिर्फ एक खातून को नहीं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, पूरे पाकिस्तान की औरतों के ऊपर उन्होंने उनकी इज़्ज़त उछाल दी है। उन्होंने सारी खवातीन की इज़्ज़त को रोन दिया है। सबका यही कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को माफ़ी मांगनी चाहिए। और एज ए एंकर पर्सन मैं भी यही कहना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी, और मैं अपनी तरफ से भी यही कहना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस तरह से ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।